us start chapter 4 of business economics, that is price determination in different markets. And I assume that there will be 3 units. So this is unit 1, meaning and types of markets. So unit 1, firstly, let us have a quick overview if it is given. So yeah, it's given. So what is the overview of the unit? It is basically price determination in different markets, its behavioral principle, then determination of price in perfect competition, and then in perfect competition we have 3: monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. So let us start quickly. So first of all, I hope that it is visible and it is quite clear. So there are basically 2 types of goods. Okay, first is free goods or non-economic goods, second is economic good or command or price or scarcity or limit. Okay, so basically free goods are non-economic goods, air, water, sunlight, etc., which are abundantly available, whereas economic goods are like command a price, they command a price, they are scarce, they are limited. Okay, price is the value in exchange or exchange value or economic value. Ricardo said exchange value means command over commodities in general or power in exchange over purchasable commodities in general. Value in use is different from value in exchange. Value in use refers to the usefulness or utility. It is this attribute which a thing may have to satisfy human wants, whereas in economics exchange value only, not sentimental value. ठीक है, subjective nature नहीं रहता है. Okay, question है, in Ricardo's view what does exchange value represent? So option C, power in exchange over purchasable commodities in general. That is what it is written, purchasable commodities in general. Now market, what is that? Collection of buyers and sellers with the potential or possibility to trade. Market is all those buyers and sellers who influence the price. Okay, so a market need not be formal or does not require a particular place. Example, second hand goods are often sold throughout online platforms like OLX, if you know it. Okay, now something else over here is given, that is elements of markets. What are the things which comprises of market? So buyers and sellers are there, a product or a service is there, bargaining for a price is there, knowledge about a market condition, then one price for a product or service given at a time. That is BP BKP, that is the mnemonic. Market, factor market and product market. Factor market, a firm whereby resources, that is inputs, that is to produce goods like factor prices. Okay, land, labor, capital, entrepreneurship. And land is what? For land you pay rent, labor you pay salary and wages. Okay, then land, labor, capital you pay interest, then entrepreneurship you pay profit. Okay, product market, whereas households buy goods from what they want from the firms. Okay, now types of markets on the basis of area: local market, regional market, national market, international market. Okay, according to time, Alfred Marshall divided. Now nature of transaction, regulation, volume of business, type of competition and all. So local market is basically for highly perishable or bulky articles like milk, vegetables, fridge, etc. Okay, regional market is wider in term. Okay, like makhela chadar, that is Assamese sari. Okay, like Lovely tea, and then Kashmiri shawl. National is like Hindi books. You won't find Hindi books anywhere. Okay, apart from India. Okay, international, trade happens gold and silver. Okay, now Alfred Marshall defined time. So basically there are 4: very short period market, that is market period. All factors are what? Fixed. Supply can't be increased or decreased. Okay, these are perishable goods. Short period में supply can be moderately adjusted. Long period में all factors are variable that are fully adjustable supply. The interaction between long run demand and supply determine the equilibrium price or normal price. तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि द इंटरेक्शन बिटवीन विच कर्व विच सप्लाई डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस और नॉर्मल प्राइस, तो आप लोग बोलोगे लॉन्ग रन डिमांड कर्व. ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड में सेक्युलर पीरियड उसको कहते हैं. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सेक्युलर पीरियड कहते हैं. किसको? वेरी लॉन्ग पीरियड को. ठीक है, तो नोट है कि अब क्लैरिफिकेशंस नाउ आउटडेटेड. ये सारे जो चीज़ें हैं ये आउटडेट हो चुकी हैं क्योंकि लोकल मार्केट में अब गुड्स आर सोल्ड हियर ऑल्सो. ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में स्पॉट और कैश मार्केट होता है और फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट होता है. नेम इट सेल्फ इज क्लियर कि गुड्स आर
एक्सचेंज्ड फॉर मनी पेएबल ईदर इमीडिएटली और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट में ना हम लोग प्रॉमिस करते हैं पे करने का या फिर डिलीवर करने का गुड्स एट अ फ्यूचर डेट, रेगुलेशन के बेसिस पे रेगुलेटेड मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंज लाइक रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है। लेकिन अनरेगुलेटेड मार्केट ना एनी अदर फ्री मार्केट, कोई भी तरह का फ्री मार्केट जैसे जो हो गया अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में होलसेल मार्केट बल्क में मिलता है, गुड्स सोल्ड इन बल्क और लार्ज क्वांटिटी बिटवीन ट्रेडर्स, वेयर एज रिटेल मार्केट है स्मॉल क्वांटिटी फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, एंड दीज ऑल दीज थिंग्स विच यू आर सीइंग डायग्राम, यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो प्राइस सेट करता है, डिमांड कर सप्लाई कर, और ये जो फर्म है ना वो अपनाती है इस प्राइस को, इट इज़ अ प्राइस टेकर, ठीक है, फर्म। लेकिन ये सब चीज़ हम लोग आगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें प्राइस फिक्स्ड होता है परफेक्ट कंपटीशन में, बिकॉज आई टोल्ड यू कि इंडस्ट्री सेट करता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है ना, मोनोपोली के केस में प्राइस मोनोपोलिस्ट ही सेट करता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली, ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा आगे, ओके। उसके बाद रेवेन्यू दिया हुआ है, तो व्हाट इज रेवेन्यू, लाइक फॉर एग्जांपल प्राइस इनटू क्वांटिटी, यू आर टेकिंग प्राइस 10 रुपीज़ एंड क्वांटिटी यू आर सेलिंग 90 रुपीज़, तो 90 इंटू 10 इज़ योर व्हाट, इट इज़ योर रेवेन्यू। बट अगर आप टोटल कॉस्ट माइनस कर दोगे 500 जो कि लगा लेट से 5 इंटू 10 बेसिकली 90 इंटू 5 अगर कहो, उस तरह के कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, वो लगा, तो अगर आप ना प्राइस से उसको कर दोगे कॉस्ट को माइनस ना, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट प्रॉफिट। दिस इज नॉट रेवेन्यू, दिस इज रेवेन्यू इंडीड, ओके। सो रेवेन्यू इज द मनी रिसीट और सेल्स रियलाइज्ड बाय सेलिंग अ कमोडिटी। यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, टीआर दिया हुआ है, एमआर दिया हुआ है और एआर दिया हुआ है। प्रॉफिट क्या होता है, टीआर माइनस टीसी, ठीक है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू यू नो कि ये हमारा एक बार हुआ तो 10 होगा, 10 माइनस 18 8 होगा, 18 माइनस मतलब 24 माइनस 18। ये ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो क्वांटिटी है ना 1 बाय 1 बढ़ रहा है, इसलिए मैं ना फॉर्मूला लगा रही हूँ MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TR माइनस N माइनस 1, यानी कि मैं 18 माइनस 10 कर रही हूँ इससे पहले वाले को। लेकिन अगर क्वांटिटी ना 2 या 1 से 4 हो जाए, 4 से 6 हो, इस तरह से मतलब 1 का गैप नहीं, 2 का, 3 का, 4 का, 1 से ज़्यादा का गैप रहेगा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़, ये वाला नहीं, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर गैप 1 से ज़्यादा रहेगा तो, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, क्योंकि हम लोग को क्वांटिटी का भी जो डिफरेंस है वो भी लेना है। एवरेज रेवेन्यू तो होता ही है TR अपॉन Q, तो 10 अपॉन 1 10 होता है, 18 अपॉन 2 9 होता है, सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो हमारा फॉर्मूलाज वगैरह है। और AR जो होता है ना हमेशा प्राइस के इक्वल रहता है, इसका एक तरह का आप देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, AR इज TR अपॉन Q, TR होता है P इंटू Q, और Q से Q कट जाएगा तो प्राइस इज इक्वल टू AR आ जाएगा। उसी हिसाब से TR जो होता है ना PQ होता है, P हमारा AR होता है, तो AR इंटू Q हमारा सम ऑफ MR भी कहलाता है। अगर आप AR को Q से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो सम आ जाएगा आपका MR का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्राइस ना 200 है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ना 10 है, ठीक है, 10 यूनिट्स है। प्राइस हमारा 200 है, क्वांटिटी डिमांडेड 10 यूनिट है, 200 क्वांटिटी डिमांडेड 10 यूनिट्स। प्राइस डिक्रीज कर देता है 3% से, जो कि 194 आ जाएगा। क्वांटिटी डिमांडेड भी 20% से जो है बढ़ जाती है, तो ये 12 हो जाएगा। अब MR पूछ रहा है, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू तो पता ही है, P इंटू Q होता है, तो वो हम लोग का 2000 निकल गया, ओके। हमसे पूछ रहा है MR कितना है, ठीक है, तो MR तो इस केस में तो खैर 2000 ही ना होगा, क्योंकि TRN माइनस TRN माइनस 1 यहाँ पे 2000 होगा। ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई आप लोग करोगे ना, यू विल गेट 2328। अब इसको इससे माइनस करना, नहीं माइनस करना, 328 आपने ना ये जो माइनस किया इसको इससे माइनस अगर कर दोगे तो आपका आ जाएगा 328, जो कि गलत होगा आंसर, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि क्वांटिटी यहाँ पर 1 से ज़्यादा में बढ़ रहा है। देखो 10 से 11 नहीं, 10 से 12 हुआ। अब हम लोग ना इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 328 अपॉन 2 तो 164 हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर 328 आया तो ये गलत है, ठीक है। सो आई होप कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये इट इज़ क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्राइस या फिर AR हमारा अगर AC एवरेज कॉस्ट की इक्वल है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। फॉर मेयर सर्वाइवल हम लोग करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट किसी चीज़ के लिए नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस हमारा कम है एवरेज कॉस्ट से, प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो आप लॉस के केस में हो। प्राइस हमारा ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि AR दिया हुआ है 10, AC एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है 8, आपका AR इज़ ग्रेटर देन AC, आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अक्वायर कर रहे हो। नेचर ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे आपका आता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो इसमें ना आपका TR का कर्व बिल्कुल ऐसा रहता है, एकदम सीधा, ठीक है। AR MR और AR MR का इस तरीके का रहता है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब होता है जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, यानी कि ऑलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इसमें ना TR बिल्कुल ऐसे करके नीचे गिरता हुआ रहता है, इसको TR
कहते हैं। ये एमआर है, ये एआर है, यानी कि थोड़ा सा स्टीपर रहता है मोनोपोली में, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा सा वाइडर रहता है। लेकिन हाँ, एक बात दोनों में इक्वल रहता है कि ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ पर, और एआर जो यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस को टच करेगा ना, ये दोनों ना बिल्कुल इक्वल रहेंगे। और जहाँ पर ये जो इस तरह से टच करेगा ना, यहाँ पर टच करेगा ना, टी आर मैक्सिमम पे रहेगा, ये उसके बाद ये जो यहाँ पे टच किया ना, यहाँ पे ई इज इक्वल टू, यानी कि इलास्टिसिटी जो है हमारा 1 होता है, इससे ऊपर इलास्टिसिटी माइनस लेस देन 1 होगा, और उसके आगे में ना यहाँ पे ना इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगा। तो वो सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। एम आर का फॉर्मूला होता है ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई। जब ई हमारा ग्रेटर देन 1 है, सपोज कर लो 2 है, तो एम आर क्या होगा, हम लोग सपोज करके उस तरह से बना है, तो ए आर का आधा हमारा एम आर है, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हमारा इलास्टिसिटी नेगेटिव हो जाएगा, ई 1 से कम हो जाएगा, तो एम आर क्या होगा, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई होता है। हम लोग डाल देंगे इसमें 0.5, इसका आ जाएगा ना, नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव लिख देंगे आंसर। अगर हमारा इलास्टिसिटी ही 1 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 हमारा 0 होगा, तो हमारा ये भी आ जाएगा 0। ए आर एम आर टी आर का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या जो है वो कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जो बताया आपको कि ई जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है ना एम आर, वहाँ पर ना ये टी आर जो है ना मैक्सिमम रहता है। उस पॉइंट पे ए आर को आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना, तो यहाँ पे ई हमारा 1 होगा, इसके ऊपर ई इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 नीचे होगा, ठीक है। ये ही चीज़ जो है हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। यहाँ पर जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पार्ट जो है, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल रहता है, ठीक है। एम आर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है, ये तो मैक्सिमम है। यहाँ पर ना ए आर देखना, यहाँ ए आर यहाँ पे 1 रहेगा, इससे ऊपर रहेगा ग्रेटर देन 1, इससे नीचे रहेगा लेस देन 1, ठीक है। तो ये सब आपको सेम चीज़ लिखा हुआ, ई इज इक्वल टू 1, एम आर इज इक्वल टू 0, टी आर मैक्सिमम होगा। ई इज ग्रेटर देन 1 तो एम आर पॉजिटिव होगा, टी आर राइज करेगा। ई इज लेस देन 1 होगा तो एम आर नेगेटिव रहेगा और टी आर फॉल करेगा। शट डाउन पॉइंट क्या होता है, एक टेम्पररी होता है, डजेंट मीन गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। प्राइस हो जाता है जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टी आर हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल लॉस हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट हमारा 100 है, टोटल रेवेन्यू हमारा 100 है, तो यहाँ पे टी आर इज इक्वल टू टी सी हो गया। तो बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट करता है एक पॉइंट पे जो कि क्लोजिंग के टाइम पर है, शट डाउन का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि टी आर अपॉन क्यू या इज इक्वल टू टी सी अपॉन क्यू हो गया, ए आर इज इक्वल टू ए सी हो गया, ठीक है। हमारा टी एफ सी 10 है, टी वी सी हमारा 90 है, और टी आर टोटल रेवेन्यू हमारा 90 है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 90 है अगर टी वी सी, और टोटल रेवेन्यू हमारा 80 है, तो ये अभी नहीं कवर हो रहा है 10 रुपया, ठीक है। 10 रुपये यहाँ पे नहीं कवर हो रहा है, तो यही है शट डाउन पॉइंट। तो टी आर इज इक्वल टू टी वी सी, टोटल रेवेन्यू हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाता है ना, तो उसको शट डाउन, शॉर्ट रन शट डाउन या फिर नॉर्मली लोग शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। यानी कि टी आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू टी वी सी अपॉन क्यू, यानी कि ए आर इज इक्वल टू ए वी सी हो जाए, तो वो प्राइस जो होता है ए आर के बराबर, ये भी हमारा शट डाउन पॉइंट होता है। बिहेवियरल प्रिंसिपल्स हमारे पास 2 होते हैं। पहला, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल रेवेन्यू आर नॉट इनफ टू कवर इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक फर्म को नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, जब इसका टोटल रेवेन्यू ना इतना हो जाए कि वो ना अपना सारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको भी नहीं कवर कर पा रहा है, यानी कि ए आर इज इक्वल टू ए वी सी की स्थिति में ना शट डाउन पॉइंट होता है, ठीक है। अ फर्म विल maximize profit or minimize losses by expanding output to the level where MR is equal to MC। क्योंकि अगर MR हमारा ग्रेटर देन MC हो जाएगा तो हमारा क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा, और MR इज लेस देन MC हो जाएगा तो क्वांटिटी हमारा घट जाएगा ना। आई होप कि ये क्लियर है आपको। उसके बाद इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ना इस तरह का एक डायग्राम आता है जो बहुत एसेंशियल है। यहाँ पे ना MC जो कर्व है ना, MC कर्व ऊपर जा रहा है और MR कर्व नीचे जा रहा है। जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो मैक्सिमम पॉइंट होगा हमारा किसका, हमारे TP का, ठीक है। यहाँ पर जो कट किया ना, यहाँ पर आप लोग देखोगे ना इस साइड जा करके कि MR कर्व, ये वाला जो कर्व है ना, दैट इज ग्रेटर देन MC कर्व। वहीं आप इस तरफ जाओगे ना तो आपका MC कर्व इज ग्रेटर देन MR कर्व। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि MR जो है, MR इज ग्रेटर देन MC कर्व। यहाँ पर देखो तो MC कर्व इज ग्रेटर देन MR कर्व, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ना कि ये जो इस तरीके से जा रहा है ना, कॉस्ट रेवेन्यू, ये प्रॉफिट का लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये ना प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि MR इज ग्रेटर देन MC, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट इज लेस देन, जो है प्रॉफिट कम है, यहाँ पे MR इज लेस देन MC, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर है और आगे चल के और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। लेकिन हम लोग अब चलते हैं यूनिट 2 के तरफ। लेकिन हाँ, हम लोग बुक भी पढ़ेंगे बट एंड में। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, हम लोग प्राइसेस को भी डिटरमाइन करने का काम करते हैं, तो वो भी जो है गाइज ज़रूरी होता है। तो देखो ये जो है ओके, सो
It is assumed in economics the theory that the ultimate goal of the firm is to maximize profit regardless of the firm size or type of the business. Ultimate goal क्या होता है? अरे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का. मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होता है तब आपका प्राइस बढ़ रहा है, आपका डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा. तो यू नो कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है सेटरिस पैरेबस, लेकिन सेटरिस पैरेबस सप्लाई जो होता है पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मार्शल साहब बोल के गए हैं. अब एक समय आएगा ना, बीच में देखोगे कि आपका प्राइस और आपका एक प्राइस आएगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है. यहाँ पे आपको 300 दिख रहा होगा जो कि इक्वल है. हम लोग बोलेंगे जो 3 है ना, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है. ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जब डिमांड कर्व बनाएंगे और सप्लाई कर्व बनाएंगे ना, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये कट करेगा, उसको आप ना प्लॉट करोगे एक अच्छे ग्राफ पेपर पे, तो आपको ना यहाँ पे प्राइस में ना 3 लिखा हुआ दिखेगा. बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा एक, जिस क्वांटिटी पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा ना, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉइंट तो इक्विलिब्रियम का हो गया. इसके ऊपर आप देखोगे ना तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो एक्सेस सप्लाई है ना, तो ये गलत है. अब देखो नीचे देखोगे ना तो डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई कम है, तो ये शॉर्टेज का स्थिति है, यानी कि एक्सेस डिमांड हो गया. तो मार्केट जो है ना, मार्केट क्लियरिंग किसको कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम को मार्केट क्लियरिंग ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डिमांड जो लोग कर रहे हैं उसी प्राइस पर लोग खरीदना भी चाह रहे हैं और उसी प्राइस पर जो सेलर है वो बेचना भी चाह रहे हैं. अब देखो एक्सेस डिमांड के केस में ना डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जिसमें प्राइस ना बढ़ जाएगा, यानी कि अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस आ जाएगा शॉर्टेज के केस में. एक्सेस सप्लाई अगर हो जाएगा तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो डाउनवर्ड प्रेशर पड़ जाएगा. डिमांड बढ़ेगा या फिर डिमांड कम होगा? डिमांड बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगा. यहाँ पर देखो डी है D1, इस कर्व को मत देखो अभी, ये कर्व और ये कर्व, यहाँ से ये जो ऐसे जा रहा है, यहाँ से ये जो ऐसे जा रहा है, यहाँ पर से उठ करके इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ गया है. इस वजह से ना डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई जो है वही 10 का 10 है, तो सब प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा. ठीक है, उसके बाद डिमांड अगर कम हो जाएगा, अब ये कर्व मत देखना, ये देखना. ठीक है, ये ना यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ गया. ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया है. तो देखो डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा है, एक्सेस सप्लाई हो गया ना, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों कम हो जाएगा. उसी केस में अगर डिमांड जैसा का तैसा रह जाएगा, तो अगर सप्लाई सिर्फ अगर बढ़ेगा या घटेगा, तो सप्लाई अगर बढ़ेगा तो ना प्राइस घट जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा. देखो सप्लाई क्या हुआ? सप्लाई बढ़ गया. ठीक है, सप्लाई बढ़ा ना तो प्राइस जो है ना वो देखो ऐसे करके ऐसे आ गया, प्राइस घट गया और क्वांटिटी बढ़ गया. लेकिन सप्लाई अगर कम हो जाएगा ना तो प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी जो है ना वो कम हो जाएगा. तो ये आई होप कि क्लियर है. उसके बाद हम लोग साइमल्टेनियसली जो होता है ना वो देखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है समझने में. देखो सबसे पहले तो ये देखो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो सेम रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इसलिए बढ़ जाएगा ना क्योंकि हम लोग ना सप्लाई ज़्यादा कर दे रहे हैं. ठीक है, हम लोग डिमांड को ज़्यादा बढ़ाएंगे, सप्लाई को कम बढ़ाएंगे, दोनों बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड को ज़्यादा बढ़ाएंगे और सप्लाई को कम बढ़ाएंगे तो प्राइस जो है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड आपका ज़्यादा बढ़ा है ना और क्वांटिटी भी बढ़ेगा, लेकिन हाँ उतने प्रोपोर्शन से नहीं. ठीक है, डायग्राम में आई होप कि ये क्लियर है. डिमांड हमारा बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं जितना सप्लाई बढ़ेगा, यानी कि सप्लाई में जितना इंक्रीज है दैट इज ग्रेटर द इंक्रीज इन डिमांड. तो इसमें ना प्राइस विल बी फॉलोइंग. क्यों ऐसा होगा? बिकॉज देखो डिमांड बढ़ रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है जितना सप्लाई बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगा. तो आई होप कि ये डायग्राम वगैरह दैट इज क्लियर एंड इफ इट इज नॉट देन यू कैन चेक योर बुक्स. ठीक है, व्हेन डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज करता है साइमल्टेनियसली देन इट इज सर्टेन कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही. यानी कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहा है, अब किस प्रोपोर्शन में दैट इज नॉट क्लियर, लेकिन ये सर्टेन है कि क्वांटिटी हमारा जो है तीनों केसेस में जो है बढ़ेगा. आपको दिख रहा होगा तीनों केसेस में क्वांटिटी हमारा बढ़ेगा. उसी हिसाब से हम लोग बात करते हैं डिमांड घटेगा सप्लाई घटेगा तो क्या होगा. देखो ये तो सर्टेन रहेगा कि क्वांटिटी ना फॉल करेगा, लेकिन हम लोग देखते हैं पहले डिमांड और सप्लाई दोनों सेम क्वांटिटी से गिर गया तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस तो खैर सेम रहेगा, क्वांटिटी जो है ना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो गिर जाएगा क्योंकि सप्लाई कम हो गया ना. बेसिकली डिमांड घट गया लेकिन उतना नहीं घटा जितना सप्लाई घट गया, सप्लाई कुछ ज़्यादा ही घट गया तो प्राइस जो है ना वो बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा ना घट गया और क्वांटिटी तो खैर घटेगा ही, ऑब्वियस सा बात है. डिमांड हमारा जो घटा ना वो बहुत ज़्यादा घट गया. ठीक है, और सप्लाई उतना नहीं घटा, यानी कि एक्सेस सप्लाई एक तरह से समझो ना, प्राइस घट गया, प्राइस घट जाएगा. ठीक है, एक्सेस सप्लाई का केस हो गया, क्वांटिटी तो घटेगा ही, वो तो बात है ही. यानी कि व्हेन बोथ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व डिक्रीजेस साइमल्टेनियसली देन इट इज सर्टेन दैट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल फॉल. ठीक है, उसी के साथ हमारे पास एक और केस आता है कि सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड घट रहा है, या तो डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई घट रहा है, वो हमारा दूसरा केस है. ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड घट रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्सेस सप्लाई ना हो गया. तो देखो डिमांड घट गया सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस घट जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रहेगा. क्या सेम रहेगा? सेम रहेगा. दैट इज़ देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, या ये डायग्राम समझने का केस है. सप्लाई हमारा बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, ठीक है, और डिमांड घट गया, सप्लाई ना ऐसे हुआ और डिमांड ना ऐसे हुआ. तो यहाँ पर से ना चल करके देखो, इधर ध्यान से देखो, ये था सप्लाई, सप्लाई हमारा
बढ़ गया, डिमांड हमारा घट गया। तो ये जो यहाँ पर था ना वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है ना वो घट गया, लेकिन जो क्वांटिटी है ना वो सेम है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर है। हमारा सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया है, डिमांड कम बढ़ा है। सप्लाई इंक्रीज इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। डिमांड उतना कम हुआ है लेकिन सप्लाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, तो प्राइस तो कम होगा, ये क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सप्लाई हमारा बढ़ा है लेकिन दैट इज़ लेस देन कि डिमांड में जितना डिक्रीज हुआ है, तो ये भी एक्सेस सप्लाई का काम हो गया है ना। प्राइस गिर जाएगा, क्वांटिटी गिर जाएगा, डायग्राम से इज क्लियर। डिमांड घटेगा, सप्लाई बढ़ेगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स सर्टेनली। इफेक्ट ऑन, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो घटेगा ही, कब? जब सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड घटेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैन नॉट बी कन्फर्म्ड, उसका कोई इफेक्ट हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते। उसी हिसाब से हमारा आता है एक और चीज़ कि सप्लाई घटा और डिमांड बढ़ा सेम प्रोपोर्शन में, यानी कि जिस हिसाब से सप्लाई कम हुआ उसी हिसाब से ना डिमांड बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर से चल करके यहाँ पर आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पर ना प्राइस हमारा ना बढ़ जाएगा और क्वांटिटी हमारा सेम रहेगा। वही सेम चीज़ जो यहाँ पे नीचे हो गया ना यहाँ पे ऊपर हो गया, ठीक है। अब सप्लाई कम हुआ है लेकिन दैट इज़ लेस देन डिमांड का इंक्रीज, यानी कि डिमांड इंक्रीज ज़्यादा हुआ है तो प्राइस तो बढ़ेगा ही सर्टेनली, लेकिन क्वांटिटी भी ये बढ़ जाएगा। अब देखो सप्लाई कम हुआ है, सप्लाई जो है ना वो कम हुआ है, लेकिन जो कम हुआ है ना वो ज़्यादा कम हो गया है डिमांड के इंक्रीज से। तो डिमांड बढ़ा लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, क्वांटिटी भी घट जाएगा। ओके, तो ये डायग्राम से आई होप कि क्लियर है। देखो प्राइस, देखो सप्लाई हमारा जो ना सप्लाई हमारा घट रहा है, डिमांड हमारा बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ा सप्लाई घटा, यहाँ से ऐसे आ गया, प्राइस हो गया, प्राइस जो है बढ़ गया और क्वांटिटी हमारा घट गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस सर्टेनली राइज करता है, बट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है ना वो कंफर्म नहीं किया जा सकता है। हमारा यूनिट 2 भी खत्म हो चुका है और अब हमारा ना यूनिट 3 स्टार्ट हो रहा है। तो प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, हर तरह के मार्केट फॉर्म्स में प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन बोलते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है, एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हमारे पास इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में 3 होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ऑलिगोपोली। मोनोपोली यानी कि सिंगल फर्म, यानी कि सिंगल सेलर। इसका फीचर्स होता है ना SSPENP, ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट होता है, बैरियर्स टू एंट्री होता है, ओके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन होता है, मार्केट पावर होता है, प्राइस मेकर कौन होता है? अरे मोनोपोली होता है, किसी का को क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो चीज़ आ जाते हैं ना, रेलवे वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह, ये सब जो चीज़ आ गया ना हमारा, ये हमारा मोनोपोली कहलाएगा, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मोनोपोली के अंदर आता है। मार्केट इंडस्ट्री के बराबर होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल फर्म्स। मोनोपोली इज ए सिंगल फर्म इन इंडस्ट्री या तो मार्केट। प्योर मोनोपोली इज नेवर फाउंड इन प्रैक्टिस एक्सेप्ट पब्लिक यूटिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। डिमांड हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी, ना कॉम्प्लीमेंट्री नीदर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, नीदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सब्स्टिट्यूट्स होता है, और एक सब्स्टिट्यूट्स होता है। या तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा या तो ना तो कॉम्प्लीमेंट्री ना तो सब्स्टिट्यूट रहेगा, एक सब्स्टिट्यूट रहेगा, ठीक है। तो कौन मोनोपोली क्रिएट कर सकता है? बेसिकली गवर्नमेंट कर सकता है, ओके। अगर स्केयर रिसोर्सेज है तो वो कर सकते हैं, ओके। गुडविल हो सकता है किसी का तो वो कर सकता है, पेटेंट राइट तो वो कर सकता है, कार्टेल कोई ग्रुप कर सकता है, नेचुरल मोनोपोली क्रिएट अपने आप हो जाता है, कोई स्ट्रिंजेंट लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो वो कर सकता है, ठीक है। वेरी हाई स्टार्टअप कॉस्ट अगर है तो वो कर सकता है। अगर कोई यूज़ ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस या फिर प्रेडेटरी टैक्टिक्स कर रहा है तो वो कर सकता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन या फिर कार्टल्स कर सकता है, ओके। अब हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जो मैं बहुत देर से बोल रही हूँ कि आपका जो MR है ना, वो जिस पॉइंट पर आपको एक्स एक्सिस को कट करता है ना, वहाँ पर उससे पीछे और उससे आगे का जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज इक्वल, ठीक है। MR इज इक्वल टू AR E-1 अपॉन E तो आपको पता ही है, और AR इज इक्वल टू MR E अपॉन E-1 आपको पता है, ठीक है। तो बोथ AR एंड MR आर नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड। स्लोप ऑफ MR ट्वाइस दैट ऑफ AR, यानी MR लाइज हाफ वे बिटवीन AR कर्व एंड Y एक्सिस। इट कट्स हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन Y एक्सिस एंड AR इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो थर्ड केस बता रहा है AR कैन नॉट बी जीरो, बट MR जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आई होप कि ये क्लियर है, ओके। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ना सिंगल मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में। सिंपल मोनोपोली में ना चार्ज सेम प्राइस फ्रॉम ऑल द बायर्स लाइक गुड्स, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, पोस्टल चार्जेस हो गया, ठीक है। सभी बायर से सेम प्राइस आप चार्ज करते हो तो वो सिंपल मोनोपोली है। लेकिन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी का, रेसिडेंशियल में आपका लो प्राइस लगेगा, बहुत कम प्राइस लगेगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल जगह पे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपसे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज किया जा रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है ना कि आपको ना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, इस वजह से आप कर रहे हो। टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, आपको सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करना है, इस वजह से कर रहे हो। टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय करना है, इस वजह से कर रहे हो। टू
कैप्चर फॉरेन मार्केट एंड डंपिंग। डंपिंग का मैं अभी बताऊंगी आपको, टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। टू सिक्योर इक्विटी आपको इक्वालिटी लाना है प्राइसिंग से। अब देखो डंपिंग क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से मैंने समझाया है। देखो ये जो है ना, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा चाइना है। इंडिया में एक शर्ट ना 100 रुपये का मिलता है, ठीक है, वही सेम शर्ट, सेम क्वालिटी, हर चीज़ सेम, बिल्कुल चाइना सेम टू सेम इंडिया को ना 50 रुपये का दे रही है। अब ये 50 रुपये का इंडिया में बिकेगा ना गाइस, तो क्या होगा ना कि ये 50 रुपये वाला जो है ना लोग खरीदने लगेंगे, क्योंकि ये 100 रुपये महंगा पड़ेगा, तो वो लोग क्या लेंगे, सस्ता में लेंगे। तो इंडिया इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो चाइना कर रही है इंडिया के साथ, ये डंपिंग कर रही है ना, थोप रही है, एक तरह से डंपिंग कर रही है, ठीक है। तो ये जो डंपिंग कर रही है ना, इसके खिलाफ इंडिया क्या करेगा ना कि इस पर ना ड्यूटीज लगाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटीज, ठीक है। तो ये जो 50 है ना, इस पर ये 50 रुपये ना, मान लो कस्टम ड्यूटी लगा दिया, तो 50 + 50 ये भी 100 रुपये का हो गया। अब ना ये 100% जो टैरिफ लगाया ना, इसकी वजह से ये भी 100 रुपये का हो गया। अब लोग क्या खरीदेंगे, लोग ये भी खरीदेंगे, लोग ये भी खरीदेंगे। कुछ को अगर देश से बहुत प्यार होगा तो उसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ रहेगा, तो लोग अपने देश का सामान लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो हमारा जो मोनोपोली वाला जो सिस्टम था ना, वो क्या बताया, टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स और डंपिंग। आप फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए या तो डंपिंग करने के लिए भी आप मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव आप अपना सकते हो, ठीक है। कंडीशन क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, तो फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई। आपका ना फुल कंट्रोल रहता है किस पे यार, सप्लाई पे। आपको जितना मन करेगा आप उतना सप्लाई करो। डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट्स, 2 या 2 से अधिक आप सब मार्केट्स में आप डिवाइड कर देते हो। डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी अंडर डिफरेंट मार्केट, अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी हम लोग लेते हैं अलग अलग मार्केट्स के अंदर। नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल, कोई भी तरह का आप आर्बिट्रेज यानी कि रीसेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी इन डिफरेंट मार्केट, अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस है तो आपका हाई प्राइस रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ज़्यादा है तो आपका लो प्राइस रहेगा। प्रोफेसर पीगू ने क्लासीफाई किया है 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री जो है वो बताता है कस्टमर वाइज, सेकंड डिग्री क्वांटिटी वाइज, और थर्ड डिग्री है एट्रीब्यूट या फिर क्वालिटी वाइज, ठीक है। तो 3 एट्रीब्यूट बताया प्रोफेसर पिगो ने। फर्स्ट है लाइक एग्जाम्पल दिया हुआ है कस्टमर वाइज में, डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस, फी डिसाइडेड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिग्री में ना क्वांटिटी वाइज आता है। पहला है लार्जर क्वांटिटीज अवेलेबल एट लोअर लिमिट प्राइसेस। अच्छा, लोअर यूनिट प्राइसेस, अगर आप लार्जर क्वांटिटीज ले रहे हो ना अवेलेबल, तो आपको लोअर लिमिट यूनिट प्राइस पर मिलेगा। लेकिन अगर आप ईच कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर कंसेक्यूटिव परचेज करोगे ना, तो आपको हर एक पर्टिकुलर का यूनिट का आपको अलग अलग पैसा देना पड़ेगा। थर्ड होता है ना एट्रीब्यूट वाइज, यानी कि क्वालिटी के बेसिस पे, क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो बेसिकली लोकेशन, कस्टम, सेगमेंट वगैरह पे जाए। एग्जाम्पल दिया हुआ है डंपिंग एटसेट्रा, ठीक है। लोअर प्राइसेस फ्रॉम सीनियर सिटीजन, इस तरह का एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन आता है गाइज कि अंडर मोनोपोली द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस इज वेरी कंसिडरेबल। आपके पूरे हाथ में जो रहता है ना डिग्री ऑफ कंट्रोल रहता है प्राइस पर, ठीक है। नेचुरल मोनोपोलीज अराइज व्हेन देयर आर वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लंबा है ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बेसिकली ये लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल बता रहा है ना गाइज कि ये ना आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने पढ़ा है पीछे वाली क्लासों में, तो आप लोग देख सकते हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू टाइम और साइज ऑफ परचेज, इनकम और एनी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिलेट करता है टाइम से भी, साइज ऑफ परचेज से भी, इनकम से भी, तो ये हो जाएगा सारा, ठीक है। इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मोनोपोली क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। इसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है, आप ना प्रोडक्टिव काम नहीं करते हो, आप इफिशियंसी एलोकेट नहीं कर पाते हो मोनोपोली के केस में। दे चार्ज हायर प्राइसेस एंड प्रोड्यूस लोअर। उनको लगता है ना कि देखिए मोनोपोली है तो उनका सामान तो बिकना निश्चित है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो लोग कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं करते हैं, वो हायर प्राइस चार्ज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लोअर, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि आप 200 का बेचेगा तब भी आपका बिकेगा, 1000 का बेचिएगा तब भी आपका बिकेगा, क्योंकि आप मोनोपोली हैं, ठीक है। उनको इकोनॉमिक प्रॉफिट्स मिलता है लॉन्ग रन में, या जो कि अनजस्टिफाइबल है। नॉर्मली क्या होता है, आगे चल के लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलता है, लेकिन ये जो है ना, इसको ना इकोनॉमिक प्रॉफिट्स यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि हम लोगों के लिए अनजस्टिफाइबल है, जो बाकी लोग हैं उन लोगों के लिए अनजस्टिफाइबल है। प्राइसेस इज ग्रेटर देन मार्जिनल, या मार्जिनल कॉस्ट ओनली, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा रहता है इनका प्राइसेस, तो ये जो रिड्यूस करता है कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, बेसिकली ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये देखो, ये डिमांड कर्व है ऊपर से नीचे, ये सप्लाई कर्व है यहाँ से, ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहाँ पर पॉइंट जो इंटरसेक्ट करता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेलर जो है वो उसी प्राइस पे सप्लाई करना चाहता है जिस प्राइस पे डिमांड करते रहे हैं लोग। इसे हम लोग कहते हैं क्लियरिंग
पॉइंट या फिर क्लियरिंग मार्केट प्राइस, ये वाले को। तो इससे ऊपर जो डिमांड जो था, यानी कि जो लोग पैसा देने के लिए तैयार थे, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को, इस सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर का सरप्लस। तो ये ना मोनोपोली ना बेसिकली हमारा कंज्यूमर सरप्लस को ना रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट्स कंज्यूमर सोवरेंटी एंड कंज्यूमर्स अपॉर्चुनिटीज टू चूज व्हाट दे डिजायर, यानी कि फ्रेज है ना, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो मोनोपोली का इकोनॉमिक इफेक्ट रहता है ना कि वो उससे वो जो पद है ना वो छीन लेता है बेसिकली। तो कंज्यूमर सॉवरेंटी जैसा नाम कुछ रह ही नहीं जाता है। इट मे यूज अनजस्ट मीन्स फॉर क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री, ये कुछ गलत गलत काम भी कर सकता है जिससे बैरियर्स टू एंट्री लग जाए। इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पावर्स टू ऑब्टेन फेवरेबल और लेजिस्लेटिव समथिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये ना इन्फ्लुएंस कर देता है पॉलिटिकल प्रोसेस को भी। डज नॉट इंट्रोड्यूस इफिशिएंट इनोवेशन एंड इनोवेटिव क्वालिटी, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट रिडक्शन। वही बात है कि इसको पता है कि इसका सामान बिकेगा ही चाहे जितना भी पैसा हो, तो कुछ भी नया नहीं करता है। पे लोअर प्राइसेस टू देयर सप्लायर, सप्लायर को भी कम पैसा देता है क्योंकि वो भी जानता है कि उसका सामान बस यही खरीदेगा। इकोनॉमी इज ऑल्सो लाइकली टू सफर फ्रॉम एक्स इनएफिशिएंसी, कॉम्पिटिशन लिमिटेड एंड एब्सेंट, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन तो खैर लिमिटेड रहता है या तो एकदम एब्सेंट रहता है, और इसको एक्स एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी से भी जूझना पड़ता है, ओके, ठीक है। इकोनॉमी को बेसिकली मोनोपोली के कारण, मोनोपोली दो तरीके का, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में क्या होगा, आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे, लॉस कमाओगे, या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे। लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, यानी कि प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कब आता है, सिचुएशन वेयर अ फर्म इज डूइंग इट्स बेस्ट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग लॉसेस। कंडीशन क्या है, डायग्राम आगे आएगा। एम आर इज इक्वल टू एम सी और एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, यानी कि एम सी कर्व आफ्टर राइजिंग एम आर इज इक्वल टू एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, एंड आफ्टर एम आर इज इक्वल टू एम सी शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए बेसिकली। यहाँ पर आपको ना हर तरीके का ना आपको दिखेगा डायग्राम, हर तरीके का आपको दिखेगा बेसिकली। यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो शॉर्ट रन में होता है, शॉर्ट रन में जो है इस तरीके का होता है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, आपको शॉर्ट रन में या तो नॉर्मल प्रॉफिट आप कमाओगे, या तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट अगर कमाओगे ना तो आपका प्राइस ना एवरेज कॉस्ट के बिल्कुल इक्वल रहेगा। यहाँ पर आपका ना एक पॉइंट आएगा, सबसे पहले तो ये एम आर है, ये ए आर है, एवरेज कॉस्ट आपका ना प्राइस की इक्वल है। तो प्राइस को यहाँ पे लेते हुए हम लोग इससे ना इसको इंटरसेक्ट करा देंगे तो प्राइस हमारा इक्वल हो जाएगा एवरेज कॉस्ट पे। इस प्रोसेस पे आपको मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए क्योंकि आप सर्वाइव कर पाओगे, आपका मेयर सर्वाइवल हो जाएगा, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट ऐसे काट दिया। अगर हमारा लॉस होगा तो प्राइस विल बी लेस देन एसी, यानी कि एवरेज कॉस्ट से कम रहेगा। तो ये हमारा प्राइस है और एवरेज कॉस्ट ना हमारा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ऊपर से हम लोग इसको बनाएंगे और प्राइस को ऐसे करके इसका शेडेड पार्ट हमारा लॉस रहेगा, ठीक है। उसी हिसाब से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ना हमारा नीचे हो जाएगा क्योंकि हमारा प्राइस जो रहेगा ना उससे थोड़ा सा नीचे हमारा एवरेज कॉस्ट रहेगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज लेस देन प्राइस। और ये जो शेडेड एरिया रहेगा ना, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। सेम इज इन द केस विद लॉन्ग रन का हम लोग बना देंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, यहाँ पे ए आर है, यहाँ पे एम आर है। तो यहाँ पर ना आप लोग देखेंगे कि लॉन्ग रन में ना प्राइस विल बी यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट जो नॉर्मल हो रहा है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर जो है ए सी यानी कि एल आई सी विल बी कटिंग दिस प्राइस वाला ये बहुत नीचे से, तो ये शेडेड एरिया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ना हम लोग ये डायग्राम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा जो है ये बहुत ज़्यादा स्टीपर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीपर है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्लैंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका अगर कंबाइंड बनाते हैं ना ग्राफ, तो ये इस तरह का आता है कि यहाँ पर से जहाँ पर ये शुरू हो रहा है वहाँ पर से हम लोग लाइन खींचेंगे। इसका ऊपर वाला तो हम लोग सेम रखेंगे, लेकिन नीचे वाला हम लोग ये नहीं, इसका वाला हम लोग एडजस्ट करते हुए बना देंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करके। तो हमारा बेसिकली बन जाएगा ये वाला कर्व बिल्कुल जोड़ करके, तो ये देखिए बन जाएगा। अब हमारे पास आता है ना, हमारे पास आता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, जिसमें डिफरेंशिएटेड या फिर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट मिलते हैं और हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल बी ग्रेटर देन 1। तो हमारा जो ये रहता है ना ए आर एम आर का कर्व, वो ना नीचे की ओर नहीं जाता, वो थोड़ा सा ना बढ़ा हुआ, थोड़ा सा ना फैला हुआ आपको दिखेगा। तो इसका ना फीचर्स होता है LDESKNP। सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट होता है, ये तो पता है सबको। प्राइस पॉलिसी ऑफ द फर्म होता है, सेलिंग कॉस्ट होता है, यानी एग्जिस्ट करता है सेलिंग कॉस्ट। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है और इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, और इवन हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी इसमें प्रेजेंट रहता है। शॉर्ट रन में हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जो बेसिकली ये जितने भी चीज़ें हैं ना सेम टू सेम इसकी जैसी होंगी, लेकिन थोड़ा सा ना बस ये थोड़ा सा फैला हुआ आपका डायग्राम दिखेगा। क्योंकि देखो नॉर्मल प्रॉफिट में P इज इक्वल टू AC, तो P जहाँ पे AC से ऐसे कट कर दिया, ये हमारा बन गया P इज इक्वल टू AC वाला नॉर्मल प्रॉफिट। लॉस हो जाएगा तो प्राइस जो है
प्राइस विल बी लेस देन इक्वल टू AC, यानी कि AC थोड़ा ऊपर से बना देंगे, हमारा लॉस का सिचुएशन हो जाएगा शेडेड एरिया। अगर हमारा ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो प्राइस हमारा ज़्यादा रहेगा, AC कम होगा, तो AC को यहाँ पर से हम लोग कट करेंगे तो हमारा बन जाएगा शेडेड एरिया, हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उसी तरह से हम लोग लॉन्ग रन का बात करेंगे तो लॉन्ग रन, अगर हम लोग मोनोपोली का बात करते थे तो मोनोपोली में लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था। देखो यहाँ पर ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हम लोग लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का बात करेंगे तो हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला सिनेरियो। तो पी के एकदम सामने हम लोग LAC को कट करेंगे, हमारा आ जाएगा ये वाला कर्व। अब हमारा ओलिगोपोली बताता है, ओलिगोपोली जो है वो कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर्स होता है, यानी कि कुछ सेलर्स में है कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद उसका जो है एग्जांपल दिया हुआ एयरलाइंस हो गया, टेलीफोन कनेक्शंस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, रिफाइनिंग पावर जनरेशन हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इंटरेस्ट सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा। अब देखो ओलिगोपोली में ना बहुत कम सेलर्स होते हैं, लाइक 2 to 10, यानी कि 2 से बस 10 सेलर्स रहते हैं ओलिगोपोली में। अब इसका फीचर्स होता है ना, बहुत सारा फीचर्स होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर बुक में हम लोग 3 पढ़ते हैं, जो कि है स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस। स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस का मतलब यानी कि एग्जांपल है लो कोक और पेप्सी का। अब कोक क्या किया है ना कि अपना प्राइस को घटा दिया है, तो तुरंत क्या करेगा पेप्सी भी अपना कॉस्ट को गिरा देगा, क्योंकि वो देखेगा कि लोग सब्सटीट्यूट्स पर बिलीव करते हैं। तो सब्सटीट्यूट्स का अगर प्राइस किसी सब्सटीट्यूट्स का ना अगर गिर जाता है तो दूसरे सब्सटीट्यूट पर वो लोग जाते हैं और डिमांड उसका ज़्यादा करने लगते हैं, उसका सेल बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये हो गया स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है ऐसे ओलिगोपोलिस्टिक चीज़ों पे। ग्रुप बिहेवियर होता है कि कोई एक करेगा तो वही बाकी सारा भी करेगा। इसका बाकी फीचर्स होता है ना, फ्यू सेलर्स होता है, इंटरडिपेंडेंस मैंने बता दिया, हाई क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग कॉस्ट मैंने बता दिया, इनडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कर्व। इसमें ना डिमांड कर्व निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेशन। रिजिडिटी प्राइस होता है हमारा। हमारे पास टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली होते हैं, जिसमें हमारे पास बेसिकली 1 2 3 4 5 बेसिस पर आधारित है, लेकिन हम लोग एक बार एक देखेंगे। प्योर ओलिगोपोली, जिसको परफेक्ट या फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट का पेट्रोलियम, स्टील और एल्यूमिनियम का केस में आप लोग समझो प्योर ओलिगोपोली है। इम्प्योर या फिर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली होता है, जो कि हमारा आता है इम्परफेक्ट में। उसके बाद हमारा ओपन ओलिगोपोली होता है, क्लोज्ड ओलिगोपोली होता है। ओपन ओलिगोपोली में ना न्यू फर्म्स कैन एंटर, लेकिन क्लोज्ड ओलिगोपोली में ना एंट्री रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। कल्यूसिव होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। कल्यूसिव ओलिगोपोली में ना दोनों साथ में जाते हैं टुगेदर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में ना एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, इसलिए कॉम्पिटिशन चलते रहता है। पार्शियल ओलिगोपोली और फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली में ना इंडस्ट्री डज नॉट इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय द लार्ज फर्म। पार्शियल ओलिगोपोली में ना इंडस्ट्री ना फर्म से डोमिनेट होता है, लेकिन फुल ओलिगोपोली में ना एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप होता है, ठीक है। थोप नहीं सकता आप पर कोई प्राइस, ठीक है। सिंडिकेटेड और ऑर्गेनिक होता है। एक सिंडिकेटेड होता है ना कि एक सेंट्रलाइज्ड होता है सिंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल होता है, ठीक है, कौन से में ऑर्गेनाइज्ड में, तो ये सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है ना कि टैल्कम पाउडर क्या है, तो टैल्कम पाउडर ना इम्परफेक्ट ओलिगोपोली के अंदर आता है, तो ये ना इम्परफेक्ट ओलिगोपोली के अंदर आता है। उसके पास ना मॉडल्स होता है ओलिगोपोली का, उसका क्या है, इग्नोर फर्म्स इंटरडिपेंडेंस। कोर्नॉट मॉडल होता है, फर्म्स कंट्रोल बिहेवियर इज आउटपुट, दे डू नॉट कल्यूड और कोऑपरेट। स्टैकलबर्ग का मॉडल होता है ना, स्टैकलबर्ग का मॉडल, लीडर डिसाइड्स आउटपुट एंड रेस्ट ऑफ फर्म्स आर फॉलोअर्स, यानी कि लीडर डिसाइड करता है आउटपुट और बाकी सब फर्म फॉलो करते हैं स्टैकलबर्ग्स के मॉडल में। बर्ट्रैंड का मॉडल कहता है ना कि प्राइस जो है ना वो कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बताता है कि एंटर इनटू अग्रीमेंट एंड ट्राई टू परस्यू देयर कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि ओपेक कंट्रीज होता है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग लाइक समथिंग इज देयर ओपेक कंट्रीज, ठीक है, जिसमें अभी सऊदी अरेबिया हट गया है गैस की, वैसा है। एंटर इनटू अग्रीमेंट एंड ट्राई टू परस्यू द कॉमन इंटरेस्ट में वो लोग परस्यू करते हैं। पॉल ए स्वीजी ने कहा है किंग डिमांड कर्व मॉडल दिया है, हाइपोथेसिस दिया है। यहाँ पर ना आप लोग देखेंगे ना कि इसका थोड़ा सा डिमांड कर वैसे मुड़ा हुआ है, ऐसा क्यों? देखो ये प्राइस हो गया यहाँ पर, ये जो इसके ऊपर वाला एरिया हो गया ना, सबसे पहले ये तो किंग्ड हमारा हो गया, ठीक है। ये इलास्टिसिटी हमारा 1 के इक्वल है, यहाँ पर ना इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लेस देन 1 है। इसका अजम्पशन क्या होता है कि द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज़ मोर देन द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्राइस डिक्रीज, यानी कि प्राइस इंक्रीज करता है तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स इज मोर देन द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस डिक्रीज। इसको ना
स्टिकी, फिक्स्ड या रिजिड या फिर इनफ्लेक्सिबल प्राइस भी बोलते हैं। डिमांड कर्व ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड फुल्ली, इसमें मोनोपोली में ना नो सप्लाई कर्व, क्यों? क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। मोनोप्सनी यानी मोनो प्लस पसौनी यानी कि सिंगल बायर, ठीक है। ऑलिगोपसौनी यानी कि ऑलिगोपसौनी यानी कि फ्यू बायर्स, ठीक है। बायलैटरल मोनोपोली यानी कि एक बायर और एक सेलर, ठीक है। समझ में आ गया? कॉम्बिनेशन रहता है ये ना मोनोपोली मार्केट और मोनोप्सनी मार्केट का, ठीक है। टूथपेस्ट इंडस्ट्री हमारा ऑलिगोपोली आ जाएगा, ठीक है। फ्यू टू और 10 रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा गेम थ्योरी ऑफ ऑलिगोपोली आता है। गेम थ्योरी ऑफ ऑलिगोपोली बताता है कि इट इज़ डेवलप्ड बाय वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मार्जेंटर्न इन 1944। तो 1944 में वॉन न्यूमन और ऑस्कर मार्जेंटर्न ने निकाला। द सब्जेक्ट ऑफ गेम्स थ्योरी इज रैशनल बिहेवियर इन सिचुएशंस, यानी कि रैशनल बिहेवियर होना चाहिए सिचुएशंस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, मिलिट्री कम्बैट, पॉलिटिकल राइवलरी, स्ट्रगल्स ऑफ फर्म्स फॉर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। इकोनॉमिक थ्योरी सिचुएशंस ऑफ डुओपोली एंड oligopoly often fit into the category, ठीक है। oligopolistic firms also select strategies in the face of uncertainty as to how the rivals will respond to the actions, ठीक है। तो ये ना गेम थ्योरी होता है oligopoly का, जो कि वॉन न्यूमन और ऑस्कर मार्जेंटर्न ने निकाला। यहाँ पे क्वांटिटी होता है 1 2 3 4 5, प्राइस या फिर AR हमारा सेम रहता है 10 10 10, TR हमारा P इंटू Q रहता है, तो इस तरह से बढ़ गया। MR तो 10 रहेगा, ठीक है। तो TR हमारा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, AR MR AR MR हमारा ऐसे रहता है, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमारा LHF KMTR, देखो क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है। होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स लाइक कुकिंग गैस, सेम रहता है सब कुछ। उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहता है, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन रहता है, ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है। लेकिन फर्म्स आर प्राइस टेकर्स होता है, ठीक है। लो या तो नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है, लो या नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रहता है। अब देखो ये जो 3 सिचुएशन है ना, ये अगर रहेगा तो वो प्योर कॉम्पिटिशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों को मिला करके ना सारा आ जाएगा तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाएगा। इसमें ये वाला जो डायग्राम है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा। इंडस्ट्री हमारा प्राइस सेटर होता है, प्राइस सेट करता है, और फर्म हमारा प्राइस अडॉप्ट करती है, प्राइस टेकर होती है। प्राइस मेकर ये, प्राइस टेकर ये। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक मिथ होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज, प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, द अबव एग्जाम्पल्स अप्रोच द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। उसके बाद हमारा ना इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म आ जाता है। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म में ना MR इज इक्वल टू MC होता है। MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो होता है। MC जो है वो राइजिंग आफ्टर MR इज इक्वल टू MC, और MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MR इज इक्वल टू MC, या तो MC नेगेटिव स्लोपिंग होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना ऐसे MR इज इक्वल टू MC और MC ऐसे कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में शॉर्ट रन लॉस होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, या तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इस केस में ना हमारा जो प्राइस है ना, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट कहाँ पे कट कर रहा है। एवरेज कॉस्ट नीचे से कट करेगा ना तो हमारा लॉस का केस होगा। ये देखो ये ना देखो प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, यहाँ पर ना लॉस का केस है, ठीक है। ये हमारा ना लॉस का केस है, क्योंकि प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। वेट, ये गलत है, ये लॉस का केस नहीं है बेसिकली। आई एम सो सॉरी, ये लॉस नहीं है, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। देखो प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि प्राइस से कम हमारा ना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट कम ना लग रहा है। अब वही अगर हमारा प्राइस से ज़्यादा अगर कॉस्ट लगेगा तो वो लॉस का केस हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे लॉस का केस है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट और प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा तब तो वो एकदम नॉर्मल प्रॉफिट है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस केस में ना हमारा ना प्राइस इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR हो जाता है। लॉन्ग रन में ना हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है, यानी कि P इज इक्वल टू AC। तो P जहाँ पर है वहाँ से AC जो है LAC। यहाँ पर ना ढेर सारे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट रहते हैं ना, तो एक यहाँ पर ऐसे कट करेगा ना, वहाँ पर पॉइंट आपको मिलेगा ना, तो P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू ये हमारा LMC इज इक्वल टू लार्ज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है LSC इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू डिमांड कर्व, ठीक है। इसमें प्रोडक्टिव इफिशियंसी होता है और एलोकेटिव इफिशियंसी होता है। एग्रीकल्चरल गुड्स मार्केट जो होता है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ऑल फर्म्स इंडिविजुअली आर प्राइस टेकर्स, यानी कि प्राइस टेकर्स है, तो उसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहते हैं। द सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन अ शॉर्ट रन इज द पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच लाइज अबव द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ABC कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का शॉर्ट रन में ये सप्लाई कर्व नहीं है इसमें। द पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का ना लाई अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC के मिनिमम पॉइंट से ये जो ऊपर का जो कर्व है ना, ये हमारा सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन शॉर्ट रन, ये हमारा सप्लाई कर्व होता है बेसिकली। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर देखो, ये जो है ना ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो एंड MC कर्व कट्स MR या फिर AC कट्स फ्रॉम बिलो, जहाँ मिनिमम पॉइंट पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ऊपर से नीचे तक का यहाँ का,
हाफ मिडवे, इसको हम लोग प्राइस वाला कहते हैं। तो ये हमारा वो वाला पोर्शन हो जाएगा। ओके, सो हमारा चैप्टर तो ओवर है, बट वी विल टेक अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द होल चैप्टर। ये मीनिंग मार्केट का सेम है, बायर सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट सर्विस होता है, क्लासिफिकेशन होता है, अच्छा बार्गेनिंग पावर भी होता है, नॉलेज भी होता है, मार्केट कंडीशन का वन प्राइस फॉर प्रोडक्ट सर्विस होता है गिवन टाइम में, ठीक है। उसके बाद ना क्लासिफिकेशन दिया हुआ है मार्केट का, बेसिकली ज्योग्राफिकल एरिया होता है, टाइम होता है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, रेगुलेशन होता है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस होता है, टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन होता है, बेसिस होता है ज्योग्राफिकल एरिया का, लोकल मार्केट होता है और बाकी सारा चीज़ सेम है। रीजनल मार्केट होता है, नेशनल मार्केट होता है, इंटरनेशनल मार्केट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में ना अल्फ्रेड मार्शल ने बोला वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है, शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है, लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड, इसको सेक्युलर पीरियड भी बोलते हैं। अच्छा, लॉन्ग पीरियड मार्केट में हम लोग नॉर्मल प्राइस निकालते हैं, ये यू नो, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे स्पॉट या कैश ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि इमीडिएटली या तो थोड़ी देर के बाद, ठीक है। फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट में ना प्रॉमिस टू डिलीवर गुड या फिर पे करते हो आप बाद में, ठीक है। रेगुलेशन के बेसिस पे रेगुलेटेड मार्केट या फिर अनरेगुलेटेड मार्केट, जैसे कि वीकली मार्केट, हाट बाजार, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे तो होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, यू नो, ठीक है। अल्टीमेट कंज्यूमर्स हमारा कहाँ से लेते हैं, रिटेल मार्केट से। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन में तो दो होते हैं, तो परफेक्ट होता है कि इम्परफेक्ट होता है, जो कि आगे आपने समझ लिया है, आगे भी आएगा, इसमें भी आएगा, आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। मार्केट स्ट्रक्चर का टाइप्स क्या होता है, सबसे पहले तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, ये कैरेक्टराइज किया जाता है मेनी सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स टू मेनी बायर्स। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिवर्स ओनली वन रिस्पेक्ट की, नेमली मेनी सेलर्स ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड, इसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो जाता है, यानी कि जैसे कि शैम्पू मैन्युफैक्चरर्स हो गया। मोनोपोली सिचुएशन होता है वेयर सिंगल सेलर सेल प्रोड्यूसिंग फॉर मेनी बायर्स, ठीक है, एक सेलर होता है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड रहता है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी रहता है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं रहता है, कोई कंपीटिंग सब्सटीट्यूट नहीं रहता है। ऑलिगोपोली में ना फ्यू सेलर्स होते हैं सेलिंग कंपीटिंग प्रोडक्ट्स टू मेनी बायर्स। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ओके, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे कि ये आपको ना एग्जांपल दिया गया है। परफेक्ट कंपटीशन में ना नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, मोनोपोलिस्टिक में बहुत मतलब बहुत नहीं ज़्यादा रहता है, लेकिन ऑलिगोपोली में थोड़े छोटे रहते हैं, मोनोपोली में तो एक रहता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन परफेक्ट कंपटीशन में रहता ही नहीं, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा रहता है, ऑलिगोपोली में नन टू सब्सटेंशियल रहता है और मोनोपोली में तो एक्सट्रीम रहता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फर्म में ना इनफाइनाइट रहता है, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज रहता है, ऑलिगोपोली में स्मॉल रहता है, मोनोपोली में स्मॉल रहता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में नन रहता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सम रहता है, ऑलिगोपोली में सम रहता है और मोनोपोली में तो वेरी कंसिडरेबल रहता है। ओके, और बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सब तो सेम है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया, सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ सेम है कि हमारा AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q होता है, क्योंकि हमारा डेरिवेशन होता है पेन टू Q अपॉन Q, तुम्हारा AR प्राइस की इक्वल होता है। मार्जिनल रेवेन्यू तो डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q होता है। हम लोग जब भी मार्जिनल वर्ड यूज़ करेंगे तो आप लोग बोलोगे एडिशनल यूनिट, ठीक है। उसके बाद आपको टेबल में एग्जाम्पल दिया गया बहुत अच्छी तरीके से। TR हमारा सम ऑफ MR होता है, MR इज इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q होता है और उसका दो फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, यानी कि चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q, ठीक है। उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, AR इज इक्वल टू MR, रिलेशनशिप दिया हुआ है AR MR TR वगैरह का, जो रिलेशनशिप मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। उसके बाद बिहेवियरल प्रिंसिपल्स दो रहते हैं हमारे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और ये वाला जो डायग्राम है ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लो, ये MR इज ग्रेटर देन MC, इस वाले में MC इज ग्रेटर देन MR, इस वाले में जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है MR इज ग्रेटर देन MC, इस वाले में प्रॉफिट डिक्रीज होता है MC इज ग्रेटर देन MR। उसके बाद यूनिट 2 आता है ना, इंट्रोडक्शन, सेम एवरीथिंग इज। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस जनरल व्यू में ना मार्केट क्लियरिंग या फिर स्टॉक क्लियरिंग जो है वो बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम वहाँ पे पॉइंट होता है, ऊपर में सरप्लस होता है, नीचे में शॉर्टेज होता है। चेंज होता है ना, इंक्रीज या तो शिफ्ट हो जाएगा ना डिमांड में, डिक्रीज या तो शिफ्ट हो जाएगा डिमांड में, इंक्रीज या तो शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई में, डिक्रीज या तो शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई में। उसी तरीके से सारे में ना सेम एग्जांपल्स दिया हुआ है जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। साइमल्टेनियस चेंजेस होता है डिमांड और सप्लाई में, जो कि सब कुछ सेम लिखा हुआ है इस वाले में। उसके बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में TR कर्व ऐसे है, MR AR और P ऐसे है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाता है ना हमारा, ये पॉइंट हमारा हो जाता है बेसिकली, हम लोग बोलते हैं इसको आई थिंक कि इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम, या तो इसे हम लोग बोल देंगे परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस, या तो पता नहीं क्या, बट इसे हम लोग कुछ बोलते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी आता है, यहाँ पे प्राइस आता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ना TR ऐसे करके यूँ घूम करके नीचे आता है AR और MR। यहाँ पर E हमारा 1 होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पे लेस देन 1 होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स के अंदर हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर्स दिया हुआ है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। और हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, इस तरीके का तरह तरीके का आपको दिया गया है सब कुछ। और कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म कंडीशंस दिया हुआ है। और ये दो आपको चीज़ दिए हुए हैं कि शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप कॉम्पिटेटिव फर्म में कैसे कर सकते हो। शॉर्ट टर्म सप्लाई कर रहा हो तो फर्म इज कॉम्पिटेटिव मार्केट, इस तरीके का रहता है। तो कॉम्पिटेटिव मार्केट में आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सुपर मार्जिनल प्रॉफिट, आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिए हुए हैं इस तरीके से कि प्राइस जो है आपका ज़्यादा है एवरेज टोटल कॉस्ट से, कॉस्ट अगर कम है, प्राइस आपका प्रॉफिट आपका ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। प्राइस इज ग्रेटर देन ETC आपको मिल रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा कब आपका प्राइस जो हमारा होगा ETC के इक्वल, यानी कि जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको मिलेगा। लॉसेज में हमारा जो कॉस्ट ही है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट इज
ग्रेटर देन प्राइस, उसके बाद इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, सॉल्यूशंस दिया हुआ है, उसके बाद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म, इस तरीके का आप लोग देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री देता है, फिर मोनोपोली दिया हुआ है, फीचर्स दिया हुआ है जो कि सेम है, मोनोपोली किस तरीके से अराइज होता है वो भी दिया हुआ है, मोनोपोली का रेवेन्यू कर्व क्या होता है वो भी बताया गया है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन अ मोनोपोलाइज्ड मार्केट, इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली फर्म कैसे होता है वो भी बताया गया है, मैंने बता दिया सब कुछ। ये वही सारे केसेस हैं जिस तरीके से लॉन्ग रन में आपको कैसे क्या अच्छी बेनिफिट मिलते हैं, कंडीशंस होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप मैक्सिमम प्रॉफिट डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक टू एंजॉय इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। टाइप्स क्या होते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री पे क्या, कस्टमर बेसिस पे, सेकंड डिग्री पे क्या, क्वांटिटी बेसिस पे, थर्ड डिग्री पे क्या, अरे क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट बेसिस पे, यहाँ पर हम लोग बोलना चाहते हैं एट्रीब्यूट के बेसिस पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम ये सब बता दिया गया, सब मार्केट ए, सब मार्केट बी और सब मार्केट ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर दो इस तरीके का रहेगा ना तो यहाँ से हम लोग पूरा यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ना बिल्कुल सेम बना देंगे, इसके सेम बना देंगे। अब इसके नीचे वाला नहीं, ये वाला नहीं बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, तो इसको मार्केट सेपरेशन कहते हैं। फिक्सेशन ऑफ टोटल आउटपुट एंड प्राइस इन टू सब मार्केट्स बाय डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली बायलैटरल मोनोपोली, ये सब आपको पता है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको पता है, सारे फीचर्स आपको पता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के क्या होते हैं। उसके बाद आउटपुट प्राइस, आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंडीशन, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कैसे होता है, यू शिफ्ट शॉर्ट रन कर्व होता है, आपको पता है। कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम फॉर इंडिविजुअल माले में, दो कंडीशन होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में एक डिफरेंस दिया हुआ है विच इज सेम। ऑलिगोपोली का गेम थ्योरी दिया हुआ है, वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्जेंटर्न ने की थ्योरी ऑफ गेम प्रोवाइड्स डिफरेंट अप्रोचेस टू एनालिसिस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर ऑफ द ऑलिगोपोलिस्टिक अंडर अनसर्टेनिटी, अंडर सर्टेनिटी के अंदर, इन दोनों के द्वारा इन 1944। द सब्जेक्ट ऑफ गेम थ्योरी इज रैशनल बिहेवियर इन सिचुएशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मिलिट्री combat, political rivalry, struggles of firms for sales and profits, economic theory, situations of duopoly and oligopoly often fit into this category. Oligopolistic firms also select strategies in the face of uncertainty as to how their rivals will respond to their actions. Types of monopoly होता है हमारा प्योर oligopoly या फिर perfect oligopoly, पर प्रोडक्ट homogeneous होता है, nature immediate goods that are used in inputs by other. Notable examples are petroleum, steel, aluminum. Differentiated या फिर imperfect oligopoly होता है ना जब goods are sold on the basis of product differentiation, जैसे कि talcum powder, तो हम लोग बोलेंगे जो talcum powder है ना, गुड्स सोल्ड इज बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पे अगर डिफरेंट प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं तो टैल्कम पाउडर हमारा ना बेसिकली वो प्योर ऑलिगोपोली या तो परफेक्ट ऑलिगोपोली आएगा। और शायद मैंने इम्परफेक्ट बोल दिया है तो मुझे माफ़ कर देना गाइस अगर मैंने गलती से इम्परफेक्ट बोल दिया है, तो क्योंकि बुक में लिखा हुआ है इट इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो टैल्कम पाउडर ना हमारा परफेक्ट ऑलिगोपोली के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ठीक कर दिया है। तो एंड इसमें ना जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अच्छा इम्परफेक्ट ही होगा गाइज, सो सॉरी। इसमें आपको बताया गया है कि डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ऑलिगोपोली, आपको परफेक्ट ऑलिगोपोली भी दिया और इम्परफेक्ट ऑलिगोपोली भी दिया है, तो माय बैड, आई वाज रॉन्ग होल द टाइम, ठीक है। बाकी सारा तो ठीक है, मतलब टैल्कम पाउडर इम्परफेक्ट ऑलिगोपोली ही होगा क्योंकि परफेक्ट ऑलिगोपोली तो होता है प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है नेचर में, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन प्रोसेस करता है रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस इमीडिएट गुड्स दैट आर इनपुट्स फॉर अदर इंडस्ट्री। इनपुट्स बनाता है कौन सा, ये प्योर ऑलिगोपोली या तो परफेक्ट ऑलिगोपोली। लेकिन इम्परफेक्ट ऑलिगोपोली या तो डिफरेंशिएटेड वाला ना बनाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे, जैसे कि टैल्कम पाउडर, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, ठीक है। ओपन क्लोज्ड इकोनॉमी तो पता है कि न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट, ओपन होता है, क्लोज्ड होता है कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होता है। कल्यूसिव और कॉम्पिटिटिव, देखो फ्यू फर्म्स ऑफ द ऑलिगोपोली मार्केट कम इनटू कॉमन इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग और एक्ट इन कल्यूजन विद ईच अदर फिक्सिंग प्राइस और आउटपुट और बोथ इज कल्यूसिव ऑलिगोपोली। लेकिन जगह एब्सेंस होता है अंडरस्टैंडिंग का अमंग द फर्म्स, दे कम्पीट विद ईच अदर, उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव ऑलिगोपोली। पार्शियल या फुल ऑलिगोपोली में ना पार्शियल तब होता है जब इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म विच इज कंसिडर्ड और लुक्ड अपॉन बाय अ लीडर ऑफ ग्रुप, लेकिन डोमिनेटिंग फर्म विल बी द प्राइस लीडर। इसमें फुल ऑलिगोपोली में ना द मार्केट विल बी कॉन्स्पिशियस बाय द एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप। सिंडिकेटेड ऑर्गेनाइज में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैंने बोल दिया था गाइज, सिंडिकेटेड और ऑर्गेनाइज में होता है। सिंडिकेटेड ऑलिगोपोली refers to that situation where the firms sell their products through a centralized syndicate। सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट से आप सामान बेचते हो तब, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड ऑलिगोपोली तो रेफर करेगा ना, ऑर्गेनाइज्ड ऑलिगोपोली रेफर करेगा सिचुएशन वेयर द फर्म्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज व्हाट, एज द सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग प्राइस आउटपुट कोटास। कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑलिगोपोली में, यू नो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें, प्राइस आउटपुट डिसीजन होता है ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट का, प्राइस लीडरशिप, किंग डिमांड कर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और अदर इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स होता है डुओपोली, मोनोपोली, ओलिगोपोली और बायलैटरल मोनोपोली, जो कि हमने पढ़ लिया। उसके बाद सम MCQs क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं और उसके बाद हमारा यूनिट खत्म हो जाता है और चैप्टर 5 स्टार्ट हो जाता है बिजनेस साइकिल। तो हम लोग इस वाले यूनिट, इस वाले क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाय बाय।